Yes, let us continue the MCQs on rotational dynamics. Yes. Okay. Just read the question. A vehicle traveling along a concave road when and then along a convex road of same radius of curvature at the uniform speed. If the normal reaction on the vehicle as it crosses the lowest point of concave surface and highest point of the convex surface are given, then the mass of the vehicle is. देखो इससे सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्हीकल एक कॉन्केव रोड से पास होता है पहले और उसके बाद फिर कॉन्वेक्स रोड के ऊपर से पास होता है, बराबर, तो देखो इस तरह से कुछ सिचुएशन हो सकता है। ये कॉन्केव रोड है और ये सपोज कॉन्वेक्स रोड है, ठीक है। तो जब यहाँ से वो पास हो रहा होगा तो उस समय उसके ऊपर कौन से फोर्सेस काम करेंगे? तो एक तो उसका वेट दैट इज mg और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है FC वी कैन से, ओके। एंड इन दोनों का जो सम है तो उसको हमको नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कराना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन विल एक्चुअली बैलेंस दिस सम ऑफ mg एंड FC, नो डाउट, बट व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट हियर, इस पॉइंट पे जो वो होगा तो उस समय क्या होगा हम देख सकते हैं, द वेट विल बी स्टिल एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, नो डाउट, एज ऑलवेज। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब यहाँ पे सेंटर यहाँ पे है, वो इस टाइप का सर्कल कवर कर रहा है, ठीक है नहीं, और उसकी वजह से उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो वो यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में काम करेगा। इट इज ऑलवेज along the radius away from the center. So this is FC, and at the same time normal reaction is also going to act on it in the upward direction. So this is normal reaction, and here we see it revolves in a circle whose center is above like this. तो इस टाइप के सर्कल के अंदर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, जिसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसलिए से अवे फ्रॉम द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में FC हमको काम करता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशंस बनेंगे तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है तो वो हमको कितना मिल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी एक्चुअली कॉन्केव रोड सरफेस पे, तो वो हमको मिल रहा है FC प्लस mg, करेक्ट है। सो हियर इट इज mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, नो डाउट, एंड एट द सेम टाइम नॉर्मल रिएक्शन एट दिस, अच्छा ये इसको क्या बोलेंगे, a बोल देंगे, चलेगा। A मतलब concave surface, okay, and B मतलब convex surface, where the normal reaction will actually be equal to mv square upon r minus mg, correct है, because n plus FC actually becomes mg. So what we can say is तो इसके लिए इक्वेशन कैसे बनेगा, तो देखो n plus FC is equal to mg, जिसका मतलब n becomes actually equal to mg minus mv square upon r, which we can copy it here and say that nb is equal to mg minus mv square upon r, correct है। and if we just subtract these two equations, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 minus 2 gives, तो उससे हमको मिल जाएगा, देखो mv square upon r just gets cancelled, नहीं, जस्ट सिंपली ऐड करना होगा हमको, ऐड, ओके, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, so cancel this mv square upon r and we are left with na plus nb is actually going to be 2mg, correct है। and using this information we can easily find out the mass of this vehicle, correct है। just simply na और nb का ऐड करो और उसको 2g से डिवाइड करो, it's that simple, it is already done there। see here in the first situation the equation is that n1 equal to mg plus mv square upon r,
And in the second situation, the equation is n2 equal to mg minus mv square upon r. If we add these two equations, we get n1 plus n2 equal to 2mg. So n1 is already given, n2 is also given, and then g is already known. So we can just simplify this further and get it as, तो यहाँ पे ये 18 into 10 raised to 3 बन जाएगा, और उसको 20 से डिवाइड करते हो तो वो हमको 900 किलोग्राम मिल जाएगा. So this is actually going to be the weight of this vehicle. Okay, समझा क्या ठीक से? Any doubt? Yes. Okay, the bob of simple pendulum at rest is given given a minimum velocity in a horizontal direction so that it describes vertical circle of radius equal to the length of the simple pendulum. If the velocity of the bob at the highest point is v, then the velocity at an angular displacement 60 degree from lowest point is, okay. तो देखो ठीक से, ये सपोज एक बॉब है सिंपल पेंडुलम का, और उसको हमने यहाँ से एक मिनिमम वेलोसिटी दिया इस डायरेक्शन में, सो दैट इट डिस्क्राइब्स अ वर्टिकल सर्कल. ओके, तो मतलब ये वर्टिकल सर्कल जस्ट डिस्क्राइब कर सकता है, उतना मिनिमम वेलोसिटी हमने उसको दिया है. यू नो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस बॉडी टू कंप्लीट अ सर्कल? जस्ट कंप्लीट अ सर्कल. यस, what is the formula for finding the minimum velocity that is to be given to the body at the lowest point so that it can just complete a circle? Bolo jaldi. It is root of 5rg. Okay, root of 5rg, root of 3rg, and root of rg. These are the minimum values of velocities which are required for just completing the circle. Okay, तो इससे कम वैल्यूज अगर लेंगे, ये अगर वेलोसिटी यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे अगर रूट 5rg से अगर कम वैल्यू अगर देंगे उसको, तो वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, याद रखो ठीक से. तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए ये मिनिमम वेलोसिटी जरूरी होता है, याद रखो ठीक से. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको दिया हुआ है. यस, ओके. सो अब देखो, ये सपोज बॉब है और इसको हमने यहाँ पे वो वेलोसिटी दिया जिसको हम बोलेंगे u, चलेगा? u which is equal to root of 5rg. yes, and then when it will complete this circle, ये इस तरह से वो सर्कल कंप्लीट करेगा, नो डाउट. बट अभी देखो हमको निकालना क्या है यहाँ पे, बढ़ो आगे. so that it describes vertical. okay, if velocity of the bob at the highest point is v, okay, तो मतलब velocity at highest point is given to be v. तो v का मतलब क्या हुआ? it is going to be root rg, right? v का वैल्यू root rg दिया हुआ है, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब हम मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे देते हैं ताकि वो सर्कल कंप्लीट कर पाए, तो हाईएस्ट पॉइंट के पे उसका वेलोसिटी रूट आर जी ही बनता है, और वो भी दिया हुआ है, मतलब v का वैल्यू रूट आर जी है, ऐसा हमको मान के चलना है. द वेलोसिटी एट एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इज, मतलब क्या कि यहाँ से 60 डिग्री एंगल करने के बाद इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, कैसे ढूंढ के निकालेंगे? देखो, उसके लिए v इक्वल टू रूट आर जी हमको पता है, इसका मतलब हमको ये जो वेलोसिटी है वो रूट आर जी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. देखो, कल ही हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर आपको याद हो. देखो, ये जो रेडियस r लिया जाता है, तो इस r का जो प्रोजेक्शन होता है कि नहीं इस डायरेक्शन में, ये इस तरफ, तो वो बनता है r cos थीटा. याद आ रहा है? r cos थीटा. और एट द सेम टाइम ये जो h होता है वो h हम निकाल सकते हैं आराम से by just subtracting r cos theta from this full r, करेक्ट है?
इस पूरे r में से अगर हम r cos थीटा माइनस कर देंगे तो हमको h मिल जाएगा, where h is actually going to be r minus r cos theta. That means it is going to be r into 1 minus cos theta. करेक्ट है क्या? ठीक है, अभी इसमें देखो अगर h हमको मिल गया तो फिर अभी यहाँ पे h को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं इधर का। ये देखो इस पॉइंट P का ऊपर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ढूंढ के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हाइट यूज करेंगे और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज करेंगे कि द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी व्हाइल गोइंग फ्रॉम A टू P हियर इज गोइंग टू बी सेम एज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो देखो द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये यूज करेंगे तो हमको एक रेडीमेड फॉर्मूला मिल जाता है जो तुम याद करके रख सकते हो। ठीक है, तुमको वो लर्न करके ही रखना है। व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल। याद है ना, कल हमने गलती भी किया था, फाइनल माइनस इनिशियल किया था। एक्चुअली इट इज द लॉस। तो लॉस कैसे निकालते हैं, इनिशियल में से फाइनल माइनस करने से लॉस निकाल जाता है। तो अभी इधर का जो वेलोसिटी है वो तो हमको चाहिए पी का पॉइंट का वेलोसिटी। तो पी पॉइंट का वेलोसिटी अगर हम मान लेते हैं वी डैश है, वी डैश, क्योंकि इधर का वेलोसिटी तो हमने यू एज्यूम करके रखा है और इसको एक्चुअली वी एज्यूम करके रखा है, तो इसको फिर हमको वी डैश बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, वी डैश अगर उसका वेलोसिटी है तो व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m u square minus half m v dash square, correct है, which is actually going to be equal to gain in the potential energy which is mgh, where h is actually replaced by this whole thing, right? ये जो r into 1 minus cos theta है तो उससे हमको ये h को replace करना है, and if we just divide by m and multiply by 2 then we get this simplified as u square minus v dash square is actually equal to 2gh। समझे क्या ठीक से, 2gh, okay, and if we replace this h also here then we can get it as u square minus v dash square is equal to 2g into h, h के बदले आ गया r into 1 minus cos theta, okay, and just rearranging this formula we can just get this v dash square actually. So what is v dash square here is, it is going to be u square minus 2rg into 1 minus cos theta, and then we can just take the square root of this whole thing and get this as v dash is equal to root of this whole thing, that is u square minus 2rg into 1 minus cos theta. So this is a ready-made formula which we can just learn by heart. ये फॉर्मूला जो है वो बाय हार्ट करके रखो बिल्कुल। और इससे भी आगे जाके अगर u के बदले जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी जो होता है लोएस्ट पॉइंट पे पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला, तो वो √5rg है यहाँ पे, राइट? तो वो √5rg अगर यहाँ पे डाल देंगे u के बदले तो उसमें से हमको और इसका मॉडिफिकेशन एक मिलेगा v डैश, जो कि रूट ऑफ u स्क्वायर मतलब 5rg, करेक्ट है, माइनस 2rg into 1 minus cos theta, yes, and then we can just simplify this still further and get it as v dash is equal to root of, अभी इसको 5rg minus 2rg, ये ब्रैकेट ओपन कर दो फटाफट, तो 5rg minus 2rg minus of minus plus and here it is 2rg into cos theta, और just instead of opening the bracket we would have taken the common, rg कॉमन ले सकते थे हम, देखो तो चलो rg कॉमन ले लेंगे, okay, just take rg common and what we are left with inside is 5 minus 2 in bracket 1 minus cos theta. So if we just open that bracket also in the next step, then we can get it as v dash is equal to root of, so rg into simply 3, देखो 5 minus 2 is 3 and minus of minus plus 2 cos theta, समझा क्या ठीक से, and then we will be able to use this formula here in the next step। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, बराबर, तो दिस इज थीटा and we want to find out the velocity at that point which is at an angle 60 degree here,
and that is also in terms of root rg, right? root rg is assumed as v. तो इसलिए फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ओके तो देखो यहाँ पे हमको यस v डैश हमको मिल रहा है रूट ऑफ आर जी इंटू 3 प्लस 2 cos थीटा. ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्चुअली, ये भी याद रख सकते हो, बट इट इज अ फॉर्मूला फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, जिसको कि क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहा जा सकता है. ठीक है, तो ये बन गया हमारा रूट ऑफ आर जी इंटू 3 प्लस 2 इंटू कॉस 60. What is cos 60? It is half. So it becomes root of Rg into 3 plus 2 into half. How much it is? So it is 2 cancel. We are left with 1, and hence we get it as v dash equal to root of Rg into 3 plus 1 मतलब 4. करेक्ट है, तो ये बन गया रूट ऑफ 4Rg, which happens to be actually 2 root Rg. बट ऑलरेडी हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी उन्होंने v लेके रखा है, जिसको हमको पता है ऑलरेडी कि वो रूट Rg होता है. तो इसलिए हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, v डैश इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v. दैट्स इट. तो 60 डिग्री एंगल पे जो वेलोसिटी होगा वो 2v होगा. बिल्कुल. तो देखो यहाँ पे okay, so this 2v is going to be the correct answer. See why? v equal to root Rg तो हमको पता है ऑलरेडी, एंड यही है वो फॉर्मूला जो अभी हमने प्रूव किया. याद है, जो अभी हमने लिखा था रूट ऑफ Rg ब्रैकेट में 3 प्लस 2 cos थीटा. अगर इसमें से Rg कॉमन लेते हो तो यही फॉर्मूला हमको मिलता है, एंड दिस इज द फॉर्मूला व्हिच वी कैन रिमेंबर as the formula for finding the velocity at any point in general in case of critical vertical circular motion. Critical in the sense the velocity should be minimum. Yes, okay, so here it is going to be the final result, that is 2v. okay, so next one, the bob of simple pendulum at rest is given velocity v in a horizontal direction, so that the bob describes vertical circle of radius equal to its length L. If the tension in the string is 4 times the weight of the bob when the string is horizontal, okay, when the string is horizontal, at that time tension is going to be 4 times of mg, right? The velocity of the bob when it is crossing the highest point of vertical circular motion is, yes, okay. तो देखो अब यहाँ पे suppose we have this bob, okay, suppose this is the bob and this is the length L, and suppose the velocity v is given at this point here, at the lowest point, and when it comes to this middle point here, ठीक है, स्ट्रिंग जब हॉरिजॉन्टल होता है तो उस समय स्ट्रिंग के अंदर का जो टेंशन है वो टेंशन उन्होंने दिया हुआ है 4 टाइम्स ऑफ mg. ओके, ये दिया हुआ है, तो इसको यूज करके हमको ये निकालना है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉब व्हेन इट इज क्रॉसिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट, इधर का वेलोसिटी कितना है वो हमको निकालना है. यस, हाउ कैन यू फाइंड इट आउट? v डैश बोल देंगे इसको, चलेगा? ओके, सो सी, सबसे पहले हमको ये देखना है कि व्हेन द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट हियर इज v. अच्छा, ये अब यहाँ पे हम ये v को √5rg ले सकते हैं क्या? अभी तो मुझे तुम्हारी तरफ से आंसर चाहिए, मैं नहीं देने वाला. Just tell me whether we can use the velocity v equal to √5rg here.
अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों, दोनों बताना है। सिर्फ हाँ या नहीं नहीं बताने का। बोलो जल्दी, पढ़ो द क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन ठीक से। Read the each and every word carefully. Just tell me whether we can take the velocity at the lowest point as root 5 rg, velocity at the highest point as root rg, or not, and why. अरे बोलो कुछ। यस। कौन से वर्ड से तुमको पता चलता है? सर वर्टिकल सर्कल फॉर्म कर रहा है इसके लिए। वर्टिकल सर्कल फॉर्म कर रहा है वो तो ठीक है ना, दिया है। इसलिए तो हम पूछ रहे हैं यहाँ पे कि क्या हम यहाँ पे रूट 5 आर जी और ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे रूट आर जी, ये वैल्यूज वेलोसिटी के यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पहले वो बताओ। वो जो फॉर्मूले आपने डिराइव किए थे वो वर्टिकल सर्कुलर के लिए डिराइव किए थे ना, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही है, यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं। अभी सुनो, वो जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे तो वो इस बेसिस पे थे। सबसे उसका अजम्पशन क्या था पता है? सबसे पहला अजम्पशन ये था कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। इसीलिए हमने ये v इक्वल टू रूट आर जी डिराइव किया था। याद है v इक्वल टू रूट आर जी कैसे डिराइव किया जाता है? उसके लिए हम क्या करते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी, ऐसा यूज करते हैं क्या नहीं? तब जाके ये m कैंसिल होता है और ये r उस तरफ जाता है और v स्क्वायर इक्वल टू आर जी बनता है, और इसलिए v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी मिलता है। समझा क्या ठीक से? तो इसका मतलब यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v इक्वल टू रूट आर जी कब होता है? जब एम वी स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू और एम जी का वैल्यू इक्वल होता है। ओके, बट ये हमेशा होता है क्या? चेक करो एक बार, हमेशा ऐसे ही होगा क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो? सोचो, अगर एक हमारे पास एक सिंपल सा तुमको एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो, अगर मान लो एक वर्टिकल स्ट्रिंग है मेरे पास, ओके, और इसको मैं यहाँ पे अगर 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी देता हूँ, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी दिया, और मान लो कि वो यहाँ पे जाके इधर से वापस आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब वो इधर इधर से ही इसी लेंथ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा तो परफॉर्म किया ही नहीं उसने, पूरा सर्कल कंप्लीट किया ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको जो वेलोसिटी दिया वो 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। ओके, चलो ठीक है। अगर मैंने अभी इसको 20 मीटर पर सेकेंड ये इतना वेलोसिटी दिया, देखो सेम सिचुएशन, सेम बॉडी, आई हैव गिवन द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड हियर एट द लोएस्ट पॉइंट। अभी क्या होगा? हो सकता है वो कि वो यहाँ पे जाके फिर यहाँ से शॉर्टकट बना के इधर चला जाए, हो सकता है ना? ठीक है, वो भी हो सकता है, चलो दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। बट अभी चलो कि मैंने इसको और थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी दिया, मान लो कि यहाँ पे देखिए जाके मैंने इसको 30 मीटर पर सेकेंड इतना वेलोसिटी दिया, जो कि इन दोनों से ज्यादा है, तो हो सकता है कि वो एक सर्कल जस्ट कंप्लीट करे, जस्ट कंप्लीट है। तो अभी जब ये जस्ट कंप्लीट करेगा तो तभी ऐसा होगा कि मैं हाईएस्ट पॉइंट पे उसका जो टेंशन है इस स्ट्रिंग के अंदर का वो जीरो होगा। देखो ठीक से, द स्ट्रिंग विल नाइदर बी टॉट नॉर बी स्ट्रेच्ड। तो स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच भी नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं रहेगा, इट विल बी जस्ट स्ट्रेट, ठीक है, जस्ट फॉर नेम सेक। तो ये जो बॉडी है वो यहाँ पे
बिल्कुल ऐसे क्या बोलते हैं उसको, वेटलेसनेस के जैसा पास हो रहा होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, तभी वो ऐसा वेलोसिटी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट आर जी के फॉर्मूला से निकाला जाता है। और ये जो रूट 30 मीटर पर सेकेंड जो है, तो वो हमको रूट 5 आर जी से मिला हुआ हो सकता है। इसको क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलते हैं, याद रखो ठीक से, क्रिटिकल वीसीएम। ओके, and at that time only, in this critical VCM only, at the highest point the tension in the string is going to be 0, and that's why we can equate the two forces acting on it, that is mg in the downward direction and centrifugal force in the upward direction. So when we equate these two, then and then only we get this v equal to root rg here, remember. But अभी अगर मैंने इस बॉडी को इसी पॉइंट पे बांध के अगर यहाँ पे मान लो कि 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया, अभी सोचो 30 नहीं, 40 भी नहीं, 50, अभी 50 वेलोसिटी देने से क्या होगा, ये बॉडी तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा बिल्कुल, और करता ही रहेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि भले वो सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी जब वो ऊपर के पॉइंट से गुजरेगा तो उस समय उसका जो स्ट्रिंग है तो उस समय भी स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेच रहेगा, और उस समय भी उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन जरूर रहेगा। उसको हम टी एच बोलते हैं, टी एच, जो कि निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, क्योंकि th is going to be in the downward direction and mg is also going to be in the downward direction, and at the same time fc is going to be in the upward direction. तो यहाँ पे th कैसे किसके बराबर रहेगा, fc और mg इन दोनों के डिफरेंस के बराबर रहेगा। तो th के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या मिलेगा यहाँ पे, fc माइनस mg, समझा क्या ठीक से। fc मतलब क्या है यहाँ पे, mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg here. तो ये जो th है, this th is not going to be 0 here because we have not given the velocity root 5 rg here at the lowest point. We have given the velocity at the lowest point which is greater than root 5 rg here. तो यहाँ पे root 5 rg से भी ज्यादा velocity हमने यहाँ पे इसको दिया है lowest point पे। अगर root 5 rg देते तो क्या होता, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसके अंदर का टेंशन 0 बन जाता, और उसकी वजह से ये जो v इक्वल टू रूट आर जी बन जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो नीचे ही हमने रूट 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया जो कि रूट 5 आर जी से ज्यादा है, उसकी वजह से उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, नो डाउट, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा। ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो उतना सफिशिएंट रहेगा ताकि ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर का जो वैल्यू है वो एम जी से फिर भी बड़ा रहेगा। देखो ठीक से, still it is greater than this, so mv square upon r is going to be greater than mg here, and that's why th is going to be positive. And since this th is going to be positive, this th cannot be said to be 0, and the velocity at this point, at the highest point here, will not be equal to root rg, never. तो ये जो root rg velocity है वो सिर्फ critical vertical circular motion में ही होता है। इसको हम general vertical circular motion बोलते हैं, याद रखो, general VCM। ओके, जनरल VCM मतलब क्या, जिसमें velocities at the lowest point and highest point are not minimum actually to complete a circle. जस्ट सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटीज चाहिए, उतने नहीं होते हैं वो, उससे जब बहुत ज्यादा होते हैं। अभी अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी जो है 50 के बदले अगर 70 मीटर पर सेकेंड भी दे देता हूँ, तभी भी उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना ही है। लेकिन यहाँ पे th जो है वो फिर भी ज्यादा होगा, और TL तो ज्यादा होगा ही होगा, नो डाउट। तो इसलिए देखा जाता है कि जितना हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे TH और TL दोनों बढ़ते जाएंगे, बट स्टिल इट कैन बी प्रूव्ड दैट TL minus TH always remains constant, and that constant happens to be 6 times of mg. This is a result in general circular motion, general vertical circular motion, remember. okay, तो ये बात याद रखो ठीक से। और इससे भी आगे जाके कि जो वेलोसिटीज जो है वो रूट 5 आर जी, रूट 3 आर जी और रूट आर जी, ये वैल्यूज कहाँ पे होते हैं, क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर ही सिर्फ होते हैं। जनरल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर ये वैल्यूज नहीं यूज किए जा सकते हैं। अभी हमको क्वेश्चन के अंदर ये पता लगाना होता है कि सचमुच वो क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन है या जनरल वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, कैसे पता चलेगा हमको। तो उसके लिए हमको कुछ वर्ड्स पे ध्यान देना होता है। तो उसमें से एक वर्ड है मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। देखो ठीक से, अगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी गिवन सो एज टू कंप्लीट द सर्कल, ऐसे अगर वर्ड्स यूज किए हैं तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि इट्स अ क्रिटिकल सर्कुलर मोशन।
बट अगर हमको ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि लोएस्ट पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी है वो मिनिमम नहीं है, जैसे देखो अभी थोड़ा एक्सपीरियंस अगर देखेंगे तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें से तुमको पता चलता था। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है तुमको, above of simple pendulum at rest position is given minimum velocity, ये मिनिमम वर्ड दिख रहा है, ये मिनिमम वर्ड से पता चल रहा है कि velocity in the horizontal direction so as it describes vertical circle of radius equal to its length। ओके तो ये फ्रेज जो है इससे ही पता चलता है कि वो क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ओके इसीलिए हमने यहाँ पे v इक्वल टू रूट आर जी ये वाला फॉर्मूला यूज किया, नो डाउट। बट अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी यहाँ पे ये देखो जो हम अभी कर रहे हैं, तो अभी above of simple pendulum is at rest and it's given a velocity v in the horizontal direction so that the bob describes vertical circle of equal length equal to the length of the pendulum, okay, radius equal to the length of pendulum, okay। अब अच्छा अभी इसमें देखो यहाँ पे कोई मिनिमम ऐसा वर्ड यूज किया है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के चांसेस कम है। और उससे भी आगे जाके यहाँ पे ये क्लियर कट बताया जा रहा है, देखो ठीक से, इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 4 times द वेट व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। तो अभी यहाँ पे जब वो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होता है उस समय का जो उसका टेंशन है वो 4 टाइम्स है उसके वेट से, मतलब 4 mg के बराबर है। ओके और अभी ये समझो कि जब हम ये देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखते हैं क्रिटिकल वाला, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होता है और मिडिल पॉइंट पे टेंशन कितना होता है, याद है सबको? ये देखो हाईएस्ट पॉइंट पे तो 0 होता है, वो हमको पता है ऑलरेडी। ओके टीएच इज गोइंग टू बी 0, नो डाउट। एंड व्हाट इज द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट हियर? लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होता है? 6 mg होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है कि द डिफरेंस इन द टेंशन in the highest and lowest point is always equal to 6 times of mg। okay तो मिडिल पॉइंट पे कितना होता है टेंशन, पता है किसको? देखो मिडिल पॉइंट पे टेंशन इन जनरल एट एनी पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन बाय दिस फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। ये बात तो याद होगा, cos थीटा। अभी थीटा becomes 90, right? At middle point theta becomes 90 and that's why we can say that tm मतलब t middle point will actually be equal to simply m vm square upon r, correct है क्या? plus 0 because cos 90 is 0 but vm is what? vm is actually root 3 rg, बराबर? तो अगर यहाँ पे root 3 rg डाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे हमको मिलेगा m into root 3 rg का whole square, मतलब ये 3 rg and that is to be divided by r and r gets cancelled and we are left with 3 mg and also by symmetry we can expect it up to be 3 mg। okay तो यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे टेंशन कितना होता है? 3 times of the weight of the body, लेकिन उन्होंने कितना दिया है? 4 times of the weight of the body। so how can we assume that it's a critical vertical circular motion then? No, it's not a critical vertical circular motion because the tension at the middle point when the string is horizontal, the tension is given to be 4 times of its weight, that means 4 mg, whereas in critical vertical circular motion the tension at the middle point happens to be 3 times of its weight, मतलब 3 mg होता है वो टेंशन। तो इससे ही क्लियर हो जाता है कि वो क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो नहीं है। तो इसलिए हमको यहाँ पे रूट आर जी, रूट 5 rg, रूट 3 rg ये फॉर्मूले बिल्कुल गलती से भी यूज नहीं करने हैं, ठीक है? और हमको निकालना क्या है वो भी देखो। तो the velocity of the bob when it is at crossing at the highest point of its vertical circle is, अच्छा अगर ये पूरा बाकी सब इग्नोर कर दो और अगर उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन मान लो तो फिर तो आंसर इधर ही क्लियर होगा ना, होना चाहिए ना। एट हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है? रूट आर जी होता है और रूट आर जी मतलब ये रूट जीएल हो गया। तो ये सब बाकी देने की जरूरत ही क्या है? उसका जरूरत ही नहीं बचा फिर, अगर हमको ऑलरेडी पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट आर जी होता है और रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम के बराबर है, तो रूट जीएल उसका आंसर होना चाहिए, बट दैट इज रॉन्ग आंसर। व्हाई? बिकॉज it is not the critical vertical circular motion, so you have to solve it in general in a different way। okay so अब यहाँ पे जैसे देखो अभी यहाँ पे इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा
तो हमको हाईएस्ट मिडल पॉइंट पे जो टेंशन है उसका फॉर्मूला बनाना है। वो तो हमको पता है already, ये इतना होता है। बट डोंट फॉरगेट दैट वी कैनॉट यूज दिस रूट 3rg हियर। ये रूट 3rg नहीं डालना है हमको, बट वी हैव टू इक्वेट इट विद दिस 4mg, जैसे कि उन्होंने अभी किया है। देखो अब यहाँ पे मिडल पॉइंट पे जो टेंशन का फॉर्मूला है तो वो हमारे पास है T इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन एट मिडल पॉइंट। ओके, उसको हम T1 बोल के रख देंगे, चलेगा। तो ये T1 जो है, और T1 कितना दिया हुआ है, 4mg दिया हुआ है, 4 times of the weight of the body. So if we equate this 4mg with this mv² upon r, then we can just cancel this m from both sides and r can be taken that side, so as to get this v1 square equal to 4rg, which gives v is equal to, ये देखो v is equal to 2 root rg, ये हमको मिल रहा है। v तो मिल गया, चलो ठीक है। मिडल पॉइंट का वेलोसिटी है ये, ये हम उसको हम बोल सकते हैं, चलो ठीक है। अभी अगर हम टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट अगर इक्वेट करते हैं, सॉरी लोएस्ट पॉइंट अगर इक्वेट करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, देखो एक मिनट, हमको निकालना क्या है, चेक। हाँ, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ना, ओके, और वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट हमको मिला हुआ है और हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है। तो हाईएस्ट और मिडल पॉइंट इन दोनों के बीच में हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है। जिससे देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि, हाँ तो यस, तो यहाँ पे सिर्फ, अरे ठीक है, हम करेंगे यहाँ पे। देखो ये जो है टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट, ये इक्वेट करें। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना है, हाफ m into v2 square, where v2 is going to be the velocity at highest point, which is to be found out here, okay, and plus mgh, बराबर है इधर का जो हाइट है, यहाँ से हाइट कितना है, l है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे mgl, और इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे ताकि इधर का पोटेंशियल एनर्जी 0 बन जाए। ओके, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट। व्हाट इज इट, टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगा, बट काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m into v1 square, दिस इज v1 हियर, ओके, और vm we can call it as, तो हाफ m v square plus 0, because our reference point is this only, that's why। तो अब यहाँ पे ये जो है यस mgl को अगर उस तरफ डाल देंगे, और तो हमको मिलेगा हाफ m v2 square is going to be equal to half m v1 square माइनस एम जी एल, राइट है। और इसमें अगर हाफ एम वी वन स्क्वायर के बदले अगर ये डाल देंगे ना उसका वैल्यू 4rg, तो हमको ये मिलेगा यहाँ पे हाफ ऑफ m इंटू 4rg माइनस, अच्छा r मतलब ही l है, यहाँ डोंट फॉरगेट दैट। सो r के बदले सिंपली l रिप्लेस कर देंगे, and here it is going to be mgl as it is, okay, and that is going to be half of mv2 square। Yes, so just take this mgl common from this bracket and get it as half mv2 square is equal to mgl common, and what we are left inside, अभी देखो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 2 माइनस 1, अच्छा मतलब 2 mgl माइनस 1 mgl, मतलब भी 1 mgl ना, ठीक है। तो इसमें से वापस mm कैंसिल कर दो और ये 2 को उधर लेके जाओ, तो हमको मिलेगा v2 स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2gl, करेक्ट है, 2gl, and then v2 becomes actually equal to root 2gl। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो रूट 2gl आ गया। अभी तुम बोलेंगे हमने तो लर्न करके रखा है फॉर्मूला, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट gl होता है, वो कौन सा होता है, क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो रूट gl हुआ करता है, ओके। लोएस्ट पॉइंट पे रूट 5gl हुआ करता है, या एल के बदले आर भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड मिडल पॉइंट पे वो रूट 3lg या gl होता है। तो ये क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर होता है, और जबकि यहाँ पे ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो क्रिटिकल नहीं है, इसलिए हमको ये सब पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज
V2, which is going to be root of 2GL, which is already there in option. See here, it is 4. Okay, the fourth one will be the correct answer. Yes, next one. Simple pendulum is oscillating with an angular amplitude of 60 degree. Okay, एक simple pendulum है, वो oscillate कर रहा है 60 degree angle amplitude पे. Here the M is the mass of the bob and T1 and T2 are the tensions in the string when the bob is extreme position and mean position respectively. Then what is T1 and what is T2? We have to find out. Okay, तो देखो ठीक से यहाँ पे एक बॉब, ये तो ऐसा करेंगे हम, दूसरा बोर्ड यूज करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा राइटिंग जो है वो ठीक नहीं हो रहा है. ओके, चलो तो अच्छा टाइम हो गया क्या? ठीक है, ये लास्ट सम करके स्टॉप करेंगे. ओके, देखो यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कि ये सपोज रिजिड सपोर्ट है और ये पेंडुलम, ये उसका बॉब और ये उसका 60 डिग्री एंगल एंगुलर एम्पलीट्यूड. ओके, तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ऐसे वो घूम रहा है. तो यहाँ पे उसका जो टेंशन है वो T1 है एक्सट्रीम पॉइंट पे और मेन पॉइंट पे टेंशन T2 है स्ट्रिंग के अंदर का. तो हमको T1 कितना है और T2 कितना है वो ढूंढना है सिंपली. तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जब वो जाएगा तो T1 पॉइंट पे उसको हम A बोल के रखेंगे. तो इस पॉइंट A पे उसका जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखो यहाँ से अगर हम एक प्रोजेक्ट करते हैं तो इस L का जो ये है प्रोजेक्शन है तो वो बनेगा L cos थीटा, बराबर है क्या? सॉरी, L cos थीटा. और ये अगर हम L में से माइनस करते हैं तो ये H हमको मिल जाएगा, बराबर. H जो कि हाइट होगा उसका, जिससे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे. तो वी कैन से दैट H इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू L माइनस L cos थीटा, बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं L इंटू 1 माइनस cos थीटा, नो डाउट. So this is the H, and if we equate the kinetic energy and potential energy, loss in kinetic energy and potential energy here, क्योंकि देखो ये इसी एंगुलर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है ना. ऑसिलेट करने का मतलब क्या है? इट स्टॉप्स एट दिस पॉइंट हियर, ए पॉइंट पे वो स्टॉप होता है, मतलब स्टॉप काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से जीरो हो जाता है और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है. तो ये अगर यूज करेंगे, ओके, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो अभी देखो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी उसका था तो उसको अगर हम बोल देते हैं हाफ mv स्क्वायर इनिशियल वाला, ठीक है, उसको हम हाफ mu स्क्वायर बोलते हैं. चलो, बट अभी फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो जीरो है, क्योंकि यहाँ पे जाने से ए पॉइंट पे जाने से वो रुकता है ना, ए के ऊपर तो जाने वाला ही नहीं है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन थोड़ी कंप्लीट करने वाला है, वो तो ऑसिलेट कर रहा है. तो इसलिए यहाँ पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज गोइंग टू बी mgh, नो डाउट, where h can be replaced in the next step. So we have to get this as half mv square is equal to mgh, where m
इंटू जी इंटू एच के बदले क्या आएगा एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा so that m gets cancelled from both sides and u square is obtained to be actually equal to 2gl into 1 minus cos 30 cos 60 cos 60 is what half right तो अगर ये हाफ यहाँ पे डाल दो तो हमको मिल जाएगा u square is equal to 2gl into 1 minus half which is going to be half so 2gl into half comes out to be 2 cancel and we are left with gl only so that u square becomes equal to gl so u is going to be root gl okay तो यहाँ पे 60 डिग्री पे ही देखो वेलोसिटी जो है वो रूट जीएल बन गया ठीक है अब यहाँ पे हमको इधर का टेंशन निकालना है ना तो T1 तो T1 के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास देखो एक तो यहाँ पे mg काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट उसका दूसरा जो है वो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो काम करेगा इस तरफ FC उसको बोल सकते हैं बट अभी mg को अगर हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में तो उसमें से जो एक कंपोनेंट उसका है तो वो इस तरफ काम करेगा जिसको हम mg cos थीटा बोल सकते हैं दिस इज mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट उसका इस तरफ काम करेगा जो कि mg sin थीटा होगा नो डाउट अब चलो forget about this mg sin theta but this mg cos theta adds up to this fc and balances this t1 करेक्ट है so इसलिए फिर t1 का फॉर्मूला हमको मिल गया that is fc plus mg cos theta बराबर है where theta is 60 don't forget that so we can find out this t1 which is equal to mv square upon r plus mg into cos 60 and cos 60 is half right and v is तो v is 0 here तो यहाँ पे भी वेलोसिटी तो है ही नहीं कुछ भी तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बिल्कुल काम नहीं करेगा यहाँ पे तो इसलिए 0 प्लस mg into half that means t1 is actually going to be mg by 2 ये एक बात हमको क्लियर हो गई और दूसरा अभी t2 के बारे में क्या बोल सकते हैं तो t2 will actually be equal to the tension at this point here lowest point in this direction so t2 will actually be equal to mg plus fc so इसलिए t2 का फॉर्मूला क्या बनेगा fc plus mg नो डाउट अभी यहाँ पे mg को रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो वर्टिकल है तीनों वर्टिकल है इसलिए तो fc के बदले सिर्फ हमको डालना पड़ेगा यहाँ पे हाफ सॉरी m इंटू यू स्क्वायर अपॉन r ओके r मतलब ही रेडियस है मतलब ही उसको l भी बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम चलो ठीक है l ही बोल देते हैं plus mg where mg is going to be constant okay so अभी अगर इसको सॉल्व करो तो m into u square u is going to be root gl so u square is going to be gl correct है so if we replace it by that then we get this as gl and that is divided by l as it is plus mg so that we get this l cancelled and we are left with mg plus mg which is going to be 2mg that's it so t2 is going to be 2mg and T1 is going to be half mg. That's all. This is the answer. Check. Okay. T1 is half mg and T2 is 2 mg, which is going to be the correct one. Okay. So 1 and 2 are true. Yes, the same thing is done here. mg by 2 and 2 mg. Okay, let us do this next questions next time or just we will finish this chapter here. Just practice it yourself तो तुम practice करो आगे डाउट रहेंगे तो हम एक डाउट सेशन लगा सकते हैं आराम से नेक्स्ट टाइम but you should practice it at home okay so let us stop here thank you